Good morning class, how are you all? I hope you all are doing good. In our last class, we have discussed about the topic home visit. I hope you all understood the topic very well. And today I am going to tell you about health promotion and levels of prevention of disease. This is reversible reaction that when disease is prevented, on other hand, health is being promoted. जैसे हम लोगों ने सुना है एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, उसी तरीके से एक ही टाइम पे एक ही बॉडी के अंदर हेल्थ और डिजीज़ प्रेजेंट नहीं रह सकते हैं. ठीक है. अगर हेल्थ यहाँ पे प्रेजेंट है तो डिजीज़ एब्सेंट रहेगी, अगर डिजीज़ वहाँ पे प्रेजेंट है तो हेल्थ एब्सेंट रहेगी. नाउ we are going to discuss about health promotion. What is the meaning of health promotion? Health promotion is an important component of nursing practice. Yes, it is a way of thinking that resolve around a philosophy of wholeness. What is the meaning of philosophy of wholeness? Here philosophy of wholeness indicate equilibrium condition of body and mind. Means इन सिंपल वर्ड्स साउंड माइंड इन साउंड बॉडी. जब हमारी बॉडी और माइंड जो है वो परफेक्ट फंक्शनिंग दिखा रहे हैं और एक स्टेट के अंदर रहते हैं तो वो कंडीशन क्या है, फिलोसफी ऑफ होलनेस बताती है. यानी कि एक शानदार बॉडी हो और साथ ही साथ में एक स्वच्छ माइंड भी हमारे पास में हो. वेलनेस एंड वेल बींग. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वेल बींग? आई हैव टोल्ड यू द कंसेप्ट ऑफ वेल बींग. ठीक है, इन अर्लियर क्लासेस. Well-being concept is defined by a standard of living and quality of life. What is the definition of health promotion? Health promotion is behavior motivated by desire and increase well-being and actualize human health potential. Health promotion is a process of enabling people to increase control over the determinants of health and thereby improve their health. What is the determinants of health here? Health is, we know that health is multidimensional subject and have many determinants which determine the optimum health. For example, nutrition, lifestyle, environment, medical care, and political system and genetics also. Nurses have the important role in health promotion. Then what are the roles of nurse in health promotion? Model healthy lifestyle behavior and attitude, facilitate client involvement in assessment, implementation and evaluation of health goals. क्लाइंट्स के लिए जो गोल सेट किए गए हैं उसको असिस करना, इम्प्लीमेंट करना और साथ साथ में इवोल्यूएट करना. टीच द क्लाइंट हेल्थ केयर स्ट्रेटजीज to enhance fitness, improve nutrition, manage stress and enhance relationship, assist individual, family and communities to increase their level of health, educate client to be effective healthcare consumer, assist client, families and communities to develop and choose health promoting options, guide client development in effective problem solving and decision making, reinforce client personal and family health promoting behavior, advocate in community for change and promote the healthy environment. तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है कि हेल्थ को क्या करना है, प्रमोट करना है और साथ ही साथ में डिजीज़ को प्रिवेंट करना है. अगर डिजीज़ वाली कंडीशन अराइज हो रही है या कोई रिस्क पॉपुलेशन है तो उसको क्या करना है, उसको हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करवानी है. अगर डिजीज़ हो चुकी है उस कंडीशन के अंदर लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन को फॉलो करते हुए हमारे को डिजीज़ को प्रिवेंट करना है. ठीक है, मैंने तुम्हारे को एक बार हेल्थ कंटेनम मॉडल भी बताया था. उसके अंदर बताया था कि किस तरीके से एक हेल्थ का कंटेनम होता है और एक डिजीज़ का कंटेनम होता है और नर्सेस का इंपॉर्टेंट रोल होता है कि अगर डिजीज़ वाली कंडीशन किसी बॉडी के अंदर अराइज हो चुकी है, क्लाइंट सफ़र है किसी डिजीज़ से, तो उसको किस तरीके से हेल्थ प्रमोट करके या हेल्थ प्रोवाइड करवा के कौन से कंटेनम की तरफ ले जाना या कौन से ग्रेड की तरफ ले जाना, हेल्थ ग्रेड की तरफ ले जाना. यही सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है नर्सेस का. अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं प्रिवेंशन. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रिवेंशन? व्हाट इज़ द वर्ड prevention is used for the management of those factors that could lead to disease so as to prevent occurrence of disease. ये कुछ factors हैं जिसके कारण डिजीज़ होती है, तो इनको अगर प्रिवेंट कर लिया जाए तो उस कंडीशन के अंदर डिजीज़ अक्रेंस नहीं होगा.
goal to maintain optimum health by preventing disease. Here are the levels of preventions. First level is primordial primordial level of prevention. Second one is primary level of prevention. Third is secondary level of prevention, and fourth one is tertiary level of preventions. We start our topic with primordial prevention. Definition: it is the prevention of emergence of risk factors in population in which they have not get appeared. जो अभी तक लक्षण किसी भी एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन के अंदर प्रकट नहीं हुए हैं, वो रिस्क फैक्टर्स जिससे हम लोग डिजीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और सिग्निफिकेंटली हम लोग बोल सकते हैं कि ये डिजीज़ इसको हो सकती है या इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर फैल सकती है, वो अभी तक अपीयर नहीं हुए हैं. जैसे कोविड-19 की अपन लोग बात करते हैं, ठीक है, तो वो किसी भी स्पेसिफिक एरिया के अंदर फैल सकती है क्योंकि वो पैंडेमिक है, पर अभी तक किसी पॉपुलेशन के अंदर या किसी स्पेसिफिक कम्युनिटी या एरिया के अंदर वो नहीं फैली है, तो वहाँ पे हम लोग प्रीमोडियल प्रिवेंशन दे सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं इंटरवेंशंस कौन से दिए जाएंगे. इंडिविजुअल एंड मास हेल्थ एजुकेशन. ठीक है, इंडिविजुअल लेवल पे और मास यानी कि सभी को साथ में क्या है कि हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, जिससे होल कम्युनिटी जो होगी वो एजुकेटेड होगी और उनको प्रिवेंटिव मेजर्स पता होंगे किस तरीके से वो डिजीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं या होने से रोक सकते हैं. नेक्स्ट वन इज़ primary prevention. Definition: primary prevention can be defined as action taken prior to onset of disease which removes the possibilities that a disease will ever occur. ठीक है, तो ये डिजीज़ को होने से पहले, रिस्क पॉपुलेशन के अंदर डिजीज़ को होने से पहले, उसके लक्षण प्रकट होने से पहले क्या करना है, उसी कंडीशन के अंदर उनको प्रिवेंट कर देना है ताकि वो डिजीज़ आगे जाके एक्यूट से क्रॉनिक कंडीशन के अंदर ना जा पाए, उस फेज के अंदर ना जा पाए. तो इसके लिए क्या है, स्ट्रेटेजी क्या होगी, पॉपुलेशन एंड मास स्ट्रेटेजी, हाई रिस्क स्ट्रेटेजी. इंटरवेंशन इन प्राइमरी प्रिवेंशन, जनरल हेल्थ प्रमोशंस. तो जनरल हेल्थ प्रमोशन की अपन लोग यहाँ पे बात करते हैं, तो हेल्थ प्रमोशन के लिए हेल्थ एजुकेशन देंगे, एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन भी करेंगे. अगर एनवायरनमेंट के अंदर ऐसे चांसेस हैं कि डिजीज़ ज़्यादा फैल सकती है तो उस कंडीशन के अंदर एनवायरनमेंट को भी हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि डिजीज़ जो होता है वो एनवायरनमेंट के ऊपर ही डिपेंड, डिजीज़ का जो नेचर है वो एनवायरनमेंट के ऊपर ही डिपेंड करता है. अगर एनवायरनमेंट में मॉडिफिकेशन करने से डिजीज़ के पैटर्न के अंदर कोई चेंजेज आ सकते हैं या डिजीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं तो वो हमने करना है. यहाँ पे हम लोग बात करते हैं न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन. ठीक है, न्यूट्रिशनल गाइड भी हमें देना है, लाइफस्टाइल एंड बिहेवियर चेंजेस के बारे में भी हमारे को यहाँ पे बात करनी है. तो ये है जनरल हेल्थ प्रमोशन, हेल्थ को प्रमोट करने के लिए के प्रमोटिव मेजर्स. यहाँ पे स्पेसिफिक प्रोटेक्शन की अपन लोग बात करते हैं. इम्यूनाइजेशन, जैसे कि हम लोग बात करते हैं BCG. व्हाट इज़ द एब्रीवेशन ऑफ BCG? Bacillus calmette-guerin. And DPT, डिप्टीरिया पर्ट्यूसिस एंड टिटनस. MMR, मीजल्स मम्स रूबेला वैक्सीन. ये हमारे को क्या है, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंदर ये सारी चीज़ों से इम्यूनाइज्ड किया जाता है. ये सारे टीकाकरण हमारे लिए किए जाते हैं ताकि आगे जाके ये डिजीज़ होने के चांसेस बिल्कुल ख़त्म हो जाए. कीमोप्रोफिलैक्सिस. ठीक है, टेट्रासाइक्लिन फॉर कोलेरा, डेप्साउन फॉर leprosy, chloroquine for malaria. Use of specific nutrients, vitamin A for children, iron and folic acid for pregnant women. Protection against accidents, use of helmets, seat belts, etc. Protection against occupational hazards, avoidance of allergens and protection from air pollution. ये कुछ specific protection बताए गए हैं. यहाँ पे हम लोग बात करते हैं जनरल हेल्थ प्रमोट हम लोगों ने कर ली. स्पेसिफिक प्रोटेक्शन के अंदर हम लोग प्राइमरी प्रिवेंशन में देख रहे हैं कि क्या करना है, इम्यूनाइजेशन, यूज़ ऑफ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स, प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सीडेंट, अवॉइडेंस ऑफ एलर्जेंस एंड कीमोप्रोफिलैक्सिस. सेकेंडरी प्रिवेंशन की हम लोग बात करते हैं. व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ सेकेंडरी प्रिवेंशन? द एक्शन विच हेल्प इन प्रोसेस ऑफ डिजीज at its incipient
स्टेज एंड कॉम्प्लिकेशंस, यानी कि यहाँ पे डिजीज़ का जो है वो शुरुआती दौर स्टार्ट हो चुका है, यानी कि उत्पन्न होने वाला है, यानी कि सारे लक्षण जो हैं वो सामने आने वाले हैं। तो इस कंडीशन के अंदर सेकेंडरी प्रिवेंशन में हमारे को क्या करना है, अर्ली डिटेक्टेशन एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट, अर्ली डायग्नोसिस एंड अर्ली ट्रीटमेंट हमारे को स्टार्ट कर देना है, ताकि डिजीज़ जो है वो एक्यूट कंडीशन के अंदर ही रिजॉल्व हो जाए। नहीं तो आगे वाली कंडीशन जो होगी वो क्रॉनिक हो सकती है, सीवियर हो सकती है और साथ ही साथ में फैटल हो सकती है। और फैटल ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर कितना ही ट्रीटमेंट और केयर प्रोवाइड दिया जाए क्लाइंट को, उसके लिए लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन यथावत बनी रहती है और मेडिकल ही उससे सिर्फ बचा सकता है, नहीं तो उसका मरना तय होता है। टर्सरी प्रिवेंशन की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। मैंने तुम्हारे को बहुत इजीली और बड़ा ही शॉर्ट के अंदर समझाने की कोशिश की है इस चीज़ को, है ना। टर्सरी प्रिवेंशन, ऑल मेजर्स अवेलेबल टू रिड्यूस और लिमिट इम्पेयरमेंट एंड डिसएबिलिटीज़, मिनिमाइज सफरिंग कॉज्ड बाई एग्जिस्टिंग departures from good health and to promote the patient adjustment and irremediable condition। तो यहाँ पे हम लोग टर्सरी प्रिवेंशन की बात कर रहे हैं। डिजीज़ जो है वो अब अपने आगे वाले यानी कि माइल्ड कंडीशन के अंदर से मॉडरेट से सीवियर कंडीशन के अंदर आ चुकी, ठीक है। तो सीवियर कंडीशन और क्रॉनिक कंडीशन में आने के कारण डिसएबिलिटी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। डिसएबिलिटी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि अगर किसी भी एनाटोमी, यानी कि हम लोग जब बात करते हैं कि किसी पर्टिकुलर डिजीज़ से स्पेसिफिक एनाटोमी अगर अफेक्टेड होती है तो उससे रिलेटेड फंक्शंस भी जो होते हैं वो अफेक्टेड होते हैं। अगर फंक्शंस नहीं होंगे तो उस कंडीशन में होल बॉडी ही सफ़र करने वाली है, ठीक है, क्योंकि ये सारे सिस्टम जो है वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो डिसएबिलिटी की हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिसेबिलिटी, ये हम लोग पहले समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोग बात करते हैं डिजीज़ है, ठीक है। सेकंड वन है इम्पेयरमेंट, ठीक है। अगर कोई सी भी डिजीज़ होती है तो उस कंडीशन में क्या होता है, इम्पेयरमेंट होता है। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं अगर इम्पेयरमेंट होता है किसी पर्टिकुलर डिजीज़ से तो उस कंडीशन में क्या होगा, कोई ना कोई डिसएबिलिटी 100% होगी, ठीक है। अगर किसी सिस्टम के अंदर डिजीज हुई तो उससे रिलेटेड फंक्शंस जो होंगे वो सप्रेस हो जाएंगे और उनके अंदर एरर हो जाएगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, डिसएबिलिटी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। और डिसएबिलिटी से हमेशा क्या हो सकता है, हैंडीकैप हो सकता है आदमी, यानी कि डिसएबिलिटी हमें कुछ ना कुछ दे के जाएगी, ठीक है। और हो सकता है आगे जाके डेथ होने के चांसेस भी रहे। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं डिजीज से इम्पेयरमेंट, डिसएबिलिटी। तो ये जो डिसएबिलिटी की हम लोग बात कर रहे हैं किसी भी एक पर्टिकुलर सिस्टम और एक जैसे कि हम लोग बात करते हैं कोविड-19 की, ये कौन से सिस्टम पे अटैक कर रहा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे ही अटैक कर रहा है, ठीक है। तो ये डिसेबल किसको बना रहा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को ही बना रहा है। पर इससे क्या होगा, आदमी की डेथ भी हो सकती है और हैंडीकैप भी हो सकता है। तो यहाँ पे इंटरवेंशन की हम लोग बात करते हैं। इंटरवेंशंस के अंदर हम लोग यहाँ पे डिसएबिलिटी लिमिटेड करेंगे, यानी कि जितनी भी डिसएबिलिटीज़ जो एक पर्टिकुलर डिजीज़ से हो रही है उसको लिमिटेशन करना है। देन उसके बाद में रिहेबिलिटेशन भी हमारे को प्रोवाइड करवाना है। रिहेबिलिटेशन क्योंकि इसके अंदर क्या है, ट्रीटमेंट जो है वो काफ़ी लंबे समय तक चलने वाला है, लंबे टाइम तक चलने वाला है। तो उस कंडीशन के अंदर हमारे को क्या करना है, डिसएबिलिटी को लिमिटेड करना है। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिहेबिलिटेशन। रिहेबिलिटेशन इज केयर दैट कैन हेल्प यू गेट बैक, कीप और इम्प्रूव एबिलिटीज दैट यू नीड फॉर डेली लाइफ। दीज एबिलिटीज may be physical, mental or cognitive. Cognitive means thinking and learning, and social. You may have lost them because of a disease or injury or as a side effect from medical treatment. रिहेबिलिटेशन का मतलब होता है कि अगर किसी बीमारी से अफेक्टेड होने के बाद में अगर आदमी जो होता है वो कहाँ कहाँ से लॉस होता है, उसको उसकी प्रोफेशनल लाइफ से लॉस होता है, उसकी फैमिली लाइफ से लॉस होता है, साथ ही साथ में उसके ऑक्यूपेशन भी अफेक्टेड होता है और उसकी सोशल लाइफ से भी वो अफेक्टेड होता है कि बीमारी के कारण या फिर उसके लंबे चलने वाले ट्रीटमेंट के कारण यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिहेबिलिटेशन। काफ़ी टाइप का रिहेबिलिटेशन होता है, मेडिकल रिहेबिलिटेशन, वोकेशनल रिहेबिलिटेशन, सोशल रिहेबिलिटेशन एंड साइकोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन, ठीक है।
तो ये मैंने तुम्हारे को एक जनरल आइडिया दिया है, एक रफ आइडिया दिया है, और मैंने तुम्हारे को पीपीटी भी इसके लिए सेंड करी है। पीपीटी को बहुत अच्छे से पढ़ना है और फिर उसके बाद में हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर लिसनिंग।